Good afternoon, everyone, and especially we are so happy to see young blood sitting there in the on the chairs, uh, school children, college-going children, and all of us know that cybersecurity is so important for each one of us, not only the youth, but also the people who are sitting in the front lines. अगर आज आप देखेंगे आपकी वॉच भी स्मार्ट है, आपका लैपटॉप तो है ही, आप जहाँ जाते हैं वाईफाई में कनेक्ट होते हैं, आपके फ़ोन्स सारे स्मार्ट हैं। जब सब कुछ इतना स्मार्ट है तो हमें भी थोड़ा सा स्मार्ट होना होगा ताकि हम अपने आप को सेफ रख सकें, स्पेशली यूथ। जनरली हम देखते हैं कि जो थोड़े मेच्योर लोग होते हैं वो इतनी ज़्यादा उनमें एक्साइटमेंट नहीं होती कोई भी ऐप को ओपन करने की, इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती, कुछ भी नया एकदम इंक्विजिटिव नहीं होते वो चीज़ों को लेकर। लेकिन जो यूथ है वो बहुत इंक्विजिटिव होता है। वो जैसे ही कुछ नया ऐप देखता है, जैसी कोई नया ऐड देता है, सबसे पहले वो क्लिक करता है उसको और जानना चाहता है कि इसके अंदर है क्या, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। पहले हम ये सब बुक्स में किया करते थे, आजकल हम डिजिटल वर्ल्ड में करते हैं, बट we have to be very, very aware of all these things. So with this, people who all are sitting here, none of us are cyber experts, but yes, we will try and interact with you with our own examples, that what we have faced in life and how we have overcome all those digital situations. So before we start, I would like to request each one of us to please give a small introduction about yourselves. मेरा नाम शरद कुलकर्णी है। अभी उम्र 63 है, बट एक्सेस 61 एज में मैंने सेकंड टाइम एवरेस्ट किया था। फर्स्ट एवरेस्ट मैं 58 के एज में किया था, और उसके साथ साथ 7 समिट और प्लस इंडिया के एक 4-5 टेक्निकल क्लाइंब भी मैंने किए हैं। और मैं खुद आर्टिस्ट हूँ, पेंटर हूँ, एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी चलाता हूँ, और अभी फ़िलहाल मैं पेंटिंग और फोटोग्राफी करता हूँ। Hi everyone, I am Kamya Karthikeyan. I am 17 years old और मैंने पिछले साल मई में माउंट एवरेस्ट चढ़ा था। I am the youngest female in the world to complete the 7 Summits Challenge. Thank you, sir. I've been climbing, trekking ever since I was 7 years old, climbing since I was 9 years old. तो इस पैनल में और इस पूरे फोरम में बाकी लोगों के कंपैरिजन में I have very little experience, but extremely glad to be here to speak from what I've been through and to learn from everyone else's journey as well. Hi, my name is Satyarup Siddhanta. So I have climbed the 7 summits and the 7 volcanic summits and became the first Indian to do so, the combination, as well as the first Indian to climb the 7 volcanic summits. I did the South Pole skiing, but North Pole skiing, Unmission all will know. So it's like 7 years and it got cancelled. And I have climbed multiple mountains in Indian Himalayas as well, along with Rudra Prasad Haldar. And some of them were first ascents and first Indian ascents as well. So thank you for giving me an opportunity to be here. Hello everyone, I am Colonel Pooja Nautiyal. I served Indian Army for 21 years and I'm a telecom expert. And after that, I joined National Security Council Secretariat and I'm heading the trusted telecom cell there in the telecom sector. And as far as my experience is concerned, I started my climbing in the year 2021 post taking premature retirement from the Indian Army because I wanted to challenge myself. So I took this new challenge and in 4 years I did structured training. I joined gym, I hired a personal trainer, I did various peaks to include Ahmad Abram, then Island Peak, Mount Kun here, UT Kangri, and after that, in this year, 2025, on 20th of May, I summited Mount Everest. Thank you. Hello everyone, I am Keval Hiren Kakka and I have climbed
peaks above 8,000 meters. And in the year 2019, I climbed Everest and Lhotse both together, becoming the first. And apart from that, I have climbed around 35 to 38 peaks above 6,000 meters. And I have done lots of Himalayan hikes, high altitude passes. And I have been blessed with the Tenzing Norgay National Adventure Award by our ex-president, Sri Ramnath Kovind ji. And I've received the Shiv Chhatrapati Award, which is the highest in Maharashtra. Thank you. Hello everyone, my name is Satyadeep Gupta. I've been climbing for quite some time now. Among the notable ascents, last year I did Everest and Lhotse both twice within 1 week. I'm the only person in the world to do so. And also traversed from Everest to Lhotse top in 11 hours. That is like fastest for any Indian. And apart from that, I've climbed Kanchenjunga, Makalu, I've attempted Annapurna, Lenin, Mount Noon, other mountains as well. And now from past few years, I've been training people to climb mountains, endurance sports. That is it. Thank you. So आज हम थोड़ी बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस अमंग यूथ। और मैं ये बोलूँगी यूथ ही नहीं, जो आगे बैठे हैं उनके लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। यूथ के लिए हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यूथ थोड़ा सा इमेच्योर होता है, थोड़ा सा ज्यादा एक्साइटेड होता है, तो उसको समझाना थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जो चैलेंजेस बेसिकली यूथ फेस करता है, आई हैव सीन माय ओन डॉटर, माय सन क्राइंग इन देयर रूम्स। व्हेन आई एंटर्ड देयर रूम, आई सेड व्हाट हैज हैपेंड, एंड दे आर अनेबल टू टेल मी दैट व्हाट हैज हैपेंड टू देम। समटाइम्स what happens as parent also, they are so reluctant to share their fears with us कि पता नहीं पेरेंट्स क्या करेंगे। तो आगे वालों के लिए तो ये है कि अपने बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस दीजिए कि वो आपसे कुछ भी शेयर कर सकें, और पीछे वालों के लिए ये है कि कुछ भी हो, अगर आपको कोई भी स्कैम में कोई फंसा रहा है या आपको लगता है कि मेरे साथ ये क्या हो गया या आपकी साइबर बुलिंग हो रही है, यू मस्ट शेयर विद योर पेरेंट्स। और अगर आपको लगता है कि उतना कॉन्फिडेंस मेरे पेरेंट्स के साथ मेरा नहीं है, मैं ऐसी चीजें कैसे शेयर करूं उनके साथ, मैं कुछ ऑब्सीन चीज देख रहा था लेकिन वो देखते देखते कुछ ऐसा हो गया कि मैं खुद फंस गया, अब मैं ये अपने पापा को या मम्मी को कैसे बताऊं। पेरेंट्स में कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर नहीं है तो कोई ना कोई आपका दोस्त या आपका एल्डर या आपके टीचर कोई तो होगा जिसके साथ आप शेयर कर सकें। तो यू मस्ट शेयर एनीथिंग विच इज हैपनिंग विद यू इन द डिजिटल वर्ल्ड, क्योंकि आज की डेट में फिजिकल तो कम होता है, डिजिटली किड्स आर मोर अंडर स्ट्रेस। We have another guest actually, Suresh Behra sir. He's an IT expert and he's heading Cyber Peace Foundation. Sir, please come on stage. So he's one of the panelists, ma'am, as a CTO of Cyber Peace Foundation. Please, sir. Thank you. Hello everyone. I'm Suresh Behra. I've been working in IT for about 37 years, out of which around 10 years in cybersecurity per se. I was with a public sector company. Right now I'm working as the CTO of Cyber Peace Foundation, which is engaged in cybersecurity awareness for everyone actually. So, I mean, anybody who wants to become a cyber security first responder and subsequently a cyber security ambassador can actually get in touch with us. I mean, we arrange training programs for everyone. Like we're a non-profit organization, but engaged in cyber security awareness. And so privileged to be here, connecting mountaineers with cyber security. I mean, this was Rajiv's idea, fantastic idea. Actually, this has actually this cyber fraud, crime, whatever you call it, this has invaded into every sphere, including, I guess, the mountaineers' life as well. So we'll be discussing subsequently. As of now, I mean, so glad to be here amongst this elite panel and amongst all of you who are listening so patiently. I mean, to this topic, which is apparently so different from this physical world of the mountaineers. Thank you so much. Thank you, sir. And thank you for being one of the sponsors for this Himalayan Conclave 3.0. So we were talking about youth. We are talking about the first and foremost, the situation which most of the youngsters face is cyberbullying.
आप में से कितने ने फेस किया है साइबर बुलिंग? साइबर बुलिंग पता है आपको क्या होती है? पीछे वाले बच्चे, साइबर बुलिंग ये होती है कि आपने कोई पोस्ट डाली और आपके पास उसके ऊपर जब कमेंट्स आते हैं ना सोशल मीडिया में, आपके इंस्टाग्राम में या फेसबुक में या अदरवाइज आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स आपने बनाए होंगे, उसमें कमेंट्स आते हैं, वो कमेंट्स आपको सूट नहीं करते या कुछ आपसे अलग होते हैं या कंट्रोवर्शियल डायरेक्शन में चले जाते हैं, जिससे क्या होता है आपकी मेंटल हेल्थ में इफेक्ट होने शुरू हो जाता है, आप स्ट्रेस में आने लग जाते हैं. सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट challenge which most of the young generation face. Next is online scams and phishing. Online scams and phishing is something like जैसे हम माउंटेनियरिंग करते हैं, कोई हमें फेक गाइड मिल जाए, हम उसके साथ चल रहे हैं, हम बहुत खुश हैं कि वो हमें करेक्ट डायरेक्शन में ले जा रहा है, लेकिन देखा वो हमें कुछ मिसलीड कर दिया उसने, वो हमें दूसरी डायरेक्शन में ले गया. ऐसे ही डिजिटल वर्ल्ड में भी होता है ऑनलाइन फिशिंग अटैक्स. आपके पास एक मेल आएगी, बहुत अच्छा सा लिंक बना होगा, उसमें आपको बताया जाएगा आप इस लिंक में क्लिक करिए और ऐसे ऐसे आपको कुछ अवार्ड मिलेगा या आप कुछ विनर बनेंगे. लेकिन जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं आपका एक वेब पेज खुल जाता है. वो वेब पेज लगता भी बिल्कुल एकदम रियल है, लेकिन वो रियल नहीं होता, और ऐसे ही आपके साथ स्कैम्स होने शुरू हो जाते हैं. सो ये अनदर, इट इज अगेन अ बिग इशू विद एवरीवन. नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी. इट इज समथिंग लाइक आप बेस कैंप में बैठे हैं, आपने अपना टेंट खुला छोड़ दिया और आप चले गए. अब कोई भी स्ट्रेंजर अंदर घुस सकता है, आपका सामान ले जाएगा. सिमिलरली डिजिटल वर्ल्ड में भी आपने अगर अपने पासवर्ड स्ट्रॉन्ग नहीं रखे हैं, आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं रखी है. 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब आपने पासवर्ड भी डाला, उसके बाद आपने एक और फैक्टर इंट्रोड्यूस किया कि इसमें ओटीपी मेरे मोबाइल नंबर पे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा. तो जब तक वो ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर नहीं आया तो आप कोई भी उसको खोल नहीं सकता. सो उसमें क्या होता है, प्राइवेसी आपकी थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती है. इनअप्रोप्रिएट कंटेंट. अभी इट इज समथिंग लाइक आप माउंटेनियरिंग में जा रहे हैं, किसी केव के अंदर गए और विदाउट हेडलाइट आप अंदर तो घुस गए, आपको कुछ नहीं पता अंदर क्या है. ऐसे ही हमारे डिजिटल वर्ल्ड में क्या है, कितनी सारी वेबसाइट्स हैं, इतने सारे एप्स हैं, आप अंदर तो चले जाते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता कि आप कहां जा रहे हैं. इट हैज टू बी ए गाइडेड टूर, गाइडेड थिंग. आपके पास आपकी टॉर्च लाइट होनी चाहिए ताकि आप देख सकें कि जिस ऐप को आप क्लिक कर रहे हैं वो सिक्योर है कि नहीं, जिस वेबसाइट को आप क्लिक कर रहे हैं वो सिक्योर है कि नहीं, HTTP के आगे S लगा है कि नहीं. सारी वेबसाइट्स में आता है HTTP, लेकिन अगर उसमें S लगा होगा तो वो सिक्योर वेबसाइट होगी. वहां पे एक आइकन बना होगा जो ग्रीन कलर का होगा, उससे पता चलेगा हाँ ये सिक्योर है, उसको आप क्लिक करें. एडिक्शन एंड स्क्रीन टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दी स्कूल गोइंग किड्स. आप इंस्टाग्राम पे बैठते हैं, इंस्टाग्राम में बैठ के आप जब स्वैप करना शुरू करते हैं आपको पता नहीं चलता कब 2 घंटे हो गए, कब 3 घंटे हो गए. इट इज सो एडिक्टिव. You have to discipline yourself in this field. जब तक आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं आएगा, जैसे माउंटेनियरिंग में every climber who is sitting here is a disciplined soul. When to get up, how to keep their gear, how to train themselves. This is all part of discipline. ऐसे ही डिसिप्लिन आपको डिजिटल फील्ड में रखना होगा. आपको अपना स्क्रीन टाइम रिस्ट्रिक्ट करना होगा. आप लॉक लगाइए कि 2 घंटे, ये सब प्राइवेसी सेटिंग्स में होता है. आपने लॉक लगाना है कि मैं 2 घंटे बैठूंगी या बैठूंगा और 2 घंटे के बाद मेरा स्क्रीन लॉक हो जाएगा. क्योंकि अभी आप यंग हैं, आप बच्चे हैं, आप अपने आप में आपका सेल्फ कंट्रोल थोड़ा कम होता है. इसको सीखने के लिए आप इन सब चीजों की इस्तेमाल करिए. आप टूल्स अवेलेबल हैं आजकल फोन में, वो सारे टूल्स इस्तेमाल करिए ताकि आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर सकें डिजिटल वर्ल्ड में. फेक न्यूज, मिस इंफॉर्मेशन, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एक पीयर प्रेशर बहुत होता है, फोमो है आजकल आपके जेनजी की टर्मिनोलॉजी, फियर ऑफ मिसिंग आउट. तो वो उसके चलते आप थोड़ी देर आप पढ़ाई करने बैठते हैं, थोड़ी देर के बाद आप मोबाइल उठाएंगे, देखेंगे कि मोबाइल में अरे कुछ आया, कुछ नया आया. स्नैपचैट में कुछ नया, किसी ने कुछ नया पोस्ट किया, मैं कहीं पीछे तो नहीं रह गया या पीछे तो नहीं रह गई. आप इन सब चीजों के साथ आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना है, अपने आप को डिसिप्लिन बनाना है. सो सेटिंग दिस कॉन्टेक्स्ट हियर,
I would like to, ask certain questions, some very relevant and small questions, the experiences which I think my fellow climbers would have observed or experienced. So my first question is to Keval. So Keval, in this, in today's digital world, how important do you feel is cyber awareness for the young athletes and adventurers? Not only athletes and adventurers, the complete youth who are increasingly active on social media. Would you like to throw some light on it? Sure. Thank you so much. Cyber awareness is very important. As you all know, everything that we put on social media is permanent or stays there for a longer period of time. So it leaves a trail and a mark about your credibility. For example, if I post a picture or if I post something or write a status or put it there on the feed, it will be there for a longer period of time. Now, for athletes, brands approach them. For example, as a mountaineer, different brands come to me to collaborate, or I approach different brands, but they don't know who Keval is, how Keval does, how Keval functions. So what they will do, they will go to my social media link, they will check my bio, they will check my feed. From there, they will see whether I am a positive person, whether I'm a disciplined person, whether I'm training regularly, and based on that, they will develop a credibility whether to collaborate or not. So if your social media footprint is not good or well maintained or carefully maintained, I would say, then you could lose opportunities. And if it is taken care of very well, then you can gain opportunities. This is one of the elements. Second is security. Definitely, cyber awareness is more about security. For example, we all have climbed Everest. So we get a certificate from the Nepalese government, the tourism board. और उस सर्टिफिकेट में हमारा पासपोर्ट नंबर मेंशन्ड होता है. सो बहुत बार एक्साइटमेंट में जब वो सर्टिफिकेट हमारे पास आता है, हम सोशल मीडिया पे उसको पोस्ट कर देते हैं कि ओ वी इट इज अ ग्रेट अचीवमेंट एंड वी चेरिश इट विद ऑल द पीपल हु आर विद अस. But then we forget to edit that, and that information goes out, and then it could act in a other way for people who are scamming others or who are waiting to get this information from you. So always, whenever you are posting something, be mindful, check it twice, thrice, and then move ahead. And the last point that I would like to talk about is in mountaineering, what we say is precaution is better. So before going to an expedition से हम लोग एक रेस्क्यू टीम रेडी रखेंगे, एक बैकअप प्लान रेडी रखेंगे कि ये फेल हो गया या ये नहीं चला तो उसके में क्या करना चाहिए, या एक इमरजेंसी सिचुएशन अराइज हो गई तो उसको कैसे टैकल करना चाहिए. सो सेम गोज विद साइबर सिक्योरिटी. बिफोर एनीथिंग हैपन्स, डू सम रिसर्च. एक 5 मिनट 10 मिनट का टाइम लगेगा मे बी ऑनलाइन, और कॉल समबडी. देयर आर हेल्पलाइंस फॉर साइबर सिक्योरिटी. सो उनसे आप समझिए कि अगर मेरे साथ फ्यूचर में स्कैम होता है तो मैं उसको कैसे हैंडल करूं. व्हाट आर द स्टेप्स टू बी टेकन केयर ऑफ. से पहले किसको इन्फॉर्म करना चाहिए, पहले कहाँ पे उसको अपडेट करना चाहिए, सो दैट व्हेन इट हैपेंस टू यू द सिचुएशन कैन बी हैंडल्ड calmly in a right period of time, and you can take care of the situation in an early stage rather than having a chaos later on. So I think these are some points that I feel are very important that everybody should take care of, and cyber awareness will be helping with all of this. Thank you. Thank you so much, Keval. My daughter, she was in class 7th that time, and I went to her room and she was crying. She was crying, I don't know for what, so I asked her, why are you crying? She says, nothing, Mama. Maybe she did not had that kind of trust in me that time. So I asked my son, I have 2 children, son and a daughter. Son is elder, she is younger, and then I told my son to, speak to her and in a friendly manner, just ask her what has happened. So he inquired, he sat down with her, and since they are sibling and the age gap is also only 3 years, so they share many things which children generally don't share with their parents. So she complained about cyberbullying. You can very well understand a child of 12-13 years of age undergoing this kind of stress. कितना वो ध्यान रख लेगा पढ़ाई का, क्या पढ़ाई कर लेगा, वो पढ़ाई कर ही नहीं पाएगा. So that's why I say that we need to maintain a lot of trust in our children. We should take whatever they are saying very positively,
and attend their stresses, address their stresses. So cyberbullying, we have spoken about. Similarly, online gaming. Online gaming, another incident at my place only. I was sleeping at night and suddenly I saw tung on my mobile. One time, then second time, third time. Then I saw what has happened at 12:30 at night. I opened my mobile and there was a debit, continuous debit of 10,000 rupees each. I just saw that what has happened. The first action, since I am in this field, so first action what I did, I blocked my cards, I blocked my debit card, I blocked my credit card, and then I saw that my son had entered the details of my credit card in one of the gaming app. जब आप ऐसा कुछ करते हैं, हम और मेरे को पता भी नहीं है, और उस बच्चे को भी शायद, वो भी छोटा था तब, उसको भी ये नहीं पता था कि इसको कितने बुरी तरीके से चीजें एक्सप्लॉइट होती हैं. यहाँ पर आती है वो चीज, जितनी इंफॉर्मेशन मांगी जाती है उससे जितने कम इंफॉर्मेशन में आपका काम चलता है डिजिटल वर्ल्ड में, उतनी कम इंफॉर्मेशन दीजिए. आपसे आज की डेट में देखो कई सारी साइट्स होती हैं, मैं भी जाती हूँ साइट्स में. आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं, शॉपिंग करते हुए आप उसको खोलते हैं, आपसे पूरे डिटेल्स मांग लेता है, आपका ईमेल आईडी, ऑप्शनल ईमेल आईडी, आपका नाम, आपके बच्चे कितने हैं, आपके डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आप सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, तब आप लॉग इन करते हैं उस साइट में. Without realizing, this information can be used anywhere and by anybody. Threat actors use कर सकते हैं. So we should be very very aware कि हमने minimum information, जितनी कम आप information देंगे उतने ज़्यादा आप secure रहेंगे. So keeping all these things in mind, my second question for Satyadeep is that have you or your team ever faced online threats, since you are the owner of Alti Edge? So you are very active on the social media, I've seen. So what kind of online threats or data breaches or any kind of misinformation? Because competitors, they will always thrive for putting some misinformation about your company or something. So have you ever faced these kind of situations? फर्स्ट ऑफ ऑल इन टुडेज वर्ल्ड इंफॉर्मेशन इज वेरी इजीली अवेलेबल, और जहाँ पे इंफॉर्मेशन इतनी इजीली है तो उसको पॉल्यूट करना भी उतना ही इजी हो जाता है. यू कैन इजीली पोस्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट एनीवन एंड इट स्प्रेड्स. तो होपफुली लकीली वी हैव नॉट फेस्ड एनी थ्रेट्स, बट यस मिस इन्फॉर्मेशन वी हैव फेस्ड. एंड द बेस्ट वे टू कॉम्बैट इज कि जैसे ही आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है सोशल मीडिया पे या कहीं भी, उसको सिंपली फॉरवर्ड मत करो, एक बार उसको वेरीफाई कर लीजिए इफ इट्स अ सीरियस मैटर. एंड फॉर अस माउंटेनियर्स, हम अपनी टीम में हमारे पास एक पर्सन डेजिग्नेटेड रहता है ऑन शोर, जो हमारी फैमिली से टच में रहता है कि ओनली हर इंफॉर्मेशन विल बी वैलिड. तो हम लोग, मैं कह के जाता हूँ फैमिली में कि बस उनकी ही बात सुनना, बाकी जो भी कुछ कह रहा है दैट इज नॉट ट्रू. सो यस, एंड फॉर अस ऑल्सो व्हेनेवर वी get an information about any fellow mountaineer happening anything, just don't forward it, please verify, क्योंकि वो बहुत जल्दी spread होगा and the impact it can have on their family can be very very huge. So against misinformation, our only defense is vigilance, and not going into getting cheap publicity or those things. Just be vigilant and things will be good. Thank you, Satyadeep. Now I would request Sharat sir to share his personal experience with respect to some cyber fraud which has happened with him. Sharat sir. हेलो, थैंक यू पूजा. ये माउंटेनियरिंग के हिस्ट्री में माउंटेनियरिंग की बात कर रहा हूँ क्योंकि आई एम अ माउंटेनियर. साइबर के बारे में या साइबर सेफ्टी के बारे में सर है, वो आपको बात करेंगे. लेकिन जो हमसे फेस हुआ, हमसे रहा नहीं गया. मैं और मेरी वाइफ अराउंड 2019 से पहले करीबन 3-4 साल प्रैक्टिस कर रहे थे बिकॉज ऑफ एज, कि कहाँ पे भी हम लोग कम नहीं पढ़ना चाहिए एज के हिसाब से. सो हमारे एक 2019 to 2017 में एक बड़ा न्यूज़ आया सब जगह. 16 में एक बड़ी न्यूज़ ऑल ओवर द इंडिया आई, टीवी पे आई, फ्रंट पेज पे आए, सोशल मीडिया पे आए. ज़्यादा करके सोशल मीडिया में मालूम पड़ा कि महाराष्ट्र से थे एक पुलिस कपल, इन्होंने एवरेस्ट फतेह किया दोनों ने. तो
उनको हम पहले से जानते थे, हम लोग शॉक हो गए एकदम, क्योंकि हम काफ़ी नज़दीक से उनको जानते थे। हमारे साथ उसमें एक दो क्लाइम भी किया था, उनका बॉडी लैंग्वेज ये सब हम जानते थे। जब फोटो देखा उनका, तो अब मैं क्रिएटिव फील्ड्स में एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर 30-40 साल से काम करता हूँ। फोटो देख के ही समझ गया यार ये सब फ्रॉड है। मतलब फोटो उसने मर्फ की हुई है, अभी किसकी है क्या है कुछ पता नहीं, लेकिन फोटो 100% फ्रॉड है। क्योंकि उसने क्या किया का, एक अभी जो बाद में कोइंसिडेंसली ऐसा पता चला कि वो फोटो सत्या की थी, वो बाद में पता चला। काफी लंबी स्टोरी है, उसके ऊपर एक मूवी हो सकता है, इतना बड़ा फ्रॉड था वो। पहली बार ऐसा हुआ, और दोनों पुलिस में थे करके हमें एक थोड़ा डर लग रहा था कि इसके साथ अभी कैसे फेस करें, क्योंकि उन्होंने तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके आए थे नेपाल से कि हम लोगों ने एवरेस्ट किया है करके। तो वो केस काफी लंबा चला, करीबन 2 साल चला, हमारे काफी पैसे खर्चे हो गए। लेकिन सत्य जैसे बीच में आया तो सत्य बाहर निकल आया। सत्य की हमेशा जीत होती है, वैसे सत्य हमें काफी फेस करना पड़ा। लेकिन मेरा कहना यही है कि सब लोगों को कि जो फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे आप कोई अच्छी स्पेशल फोटो अगर डालते हो तो एक कम रेजोल्यूशन की डाल दी है, क्योंकि लोगों को क्या फोटो से मतलब है, रेजोल्यूशन से कोई मतलब नहीं रहता है। अच्छा रेजोल्यूशन से होगा तो काफी मर्फ कपे, अभी आजकल तो एआई का जमाना है का कोई कुछ भी कर सकता है। लेकिन वो फिर हम लोग को कोइंसिडेंसली सत्यजीत से कनेक्ट हो गए हम लोग सत्य रूप से, और उन्होंने फिर साइबर क्राइम में वहाँ पे ये की है, उसने साइबर पुलिस में वहाँ पे कंप्लेंट की और वो सब पूरा मामला बाहर आ गया। तो हमारे ये काफ़ी बड़ा मतलब 2 साल चला, बाद में उसको डिसमिस किया ये किया। लेकिन हमारे माउंटेनियरिंग फील्ड में क्या है कि सबसे पहले सेफ्टी सीखा जाता है। मतलब सर हेलमेट से लेके क्रैम्पॉन तक सब आपके गियर से और सेफ्टी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे भी साइबर में भी आप शुरू में जैसे ही मोबाइल ओपन करते हो तो पहले चीज़ जैसे माउंटेनियरिंग सेफ्टी का ख्याल रखा जाता है, वैसे जैसे ही आप बच्चे लोग या कोई ओपन करते हो तो पहले सेफ्टी ध्यान में रख के आगे चलो। धन्यवाद। Thank you, Sharat sir. Now let us talk, about protecting your personal data and digital identity, especially while traveling. Travel करते हैं, जहां आपको फ्री का वाईफाई दिखता है, सबसे पहले आप कनेक्ट होते हो। चाहे वो एयरपोर्ट हो, आजकल तो बस स्टैंड में भी हो गया है, अच्छी मेट्रो सिटीज में बस स्टैंड जाइए आप, ISBT चाहिए, वहां पर आपको पूरा वाईफाई मिलेगा, आप एकदम तुरंत कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज थोड़ी सी ध्यान ये रखनी होती है कि कोई भी चीज जो फ्री में मिलती है ना, उसके साथ वल्नरेबिलिटीज काफी सारी आ जाती हैं। जो चीज फ्री है वहां पर हैकर्स बैठे हुए हैं, और आज आप बच्चे हैं, अगर उसको किसी बच्चे को टारगेट करना है, किसी फैमिली को टारगेट करना है, वो आपके थ्रू टारगेट कर सकता है कि बच्चे का फोन हैक कर लो, और पेरेंट्स तो अपने आप ही टारगेटेड हो ही जाएंगे। सो my next question would be to Suresh sir. Sir, what advice would you give to youth, about protecting their personal data and digital identity, especially when they are traveling and using public networks? Thank you, ma'am, for this question. Actually, children at the back, even to the people at the front. I'll tell you what is the problem today. Problem is, हमारा जो फिजिकल लाइफ है, जो नॉर्मल लाइफ है, फिजिकल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। कहीं एक ब्लरिंग हो गया दोनों के बीच में। आपका a big part of your life is actually digital. और होता क्या है ना कि फिजिकल वर्ल्ड में I trust people, later on I may be worried. Digital world में same thing cannot be applied.
I mean, you cannot trust anyone in the virtual world instantaneously. प्रॉब्लम ये है, हमको ये नहीं पता, एटलीस्ट मुझे पता है आप लोग सामने बैठे हुए हैं, आपसे बात कर रहा हूं, आप अच्छे हैं बुरे हैं जैसे भी हैं. इन अ वर्चुअल वर्ल्ड यू रियली डू नॉट नो हु इज एक्चुअली कम्युनिकेटिंग विथ यू. आपको क्या ये सच में पता कि सामने जो बोल रहा है वो ठीक है? बट देन ये जो नॉर्मल प्रिंसिपल्स ऑफ सिक्योरिटी हम वहां अप्लाई करते नहीं है. हमको लगता है ना कि लाइक पता नहीं एक आई डोंट नो वेदर आई एम एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, एक डिजिटल डिवाइस, एक टॉय तो होता नहीं है. और ये जो एक्साइटमेंट है ना डिजिटलाइजेशन को लेके, ये एक्साइटमेंट कुछ इतना हद तक बढ़ गया है कि हम उसमें इन आवर एक्साइटमेंट वी एक्चुअली अंडरमाइन सिक्योरिटी. हम डिजिटल वर्ल्ड, वर्चुअल वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड को सेपरेट नहीं करते हैं, किसी के साथ कुछ भी इंटरेक्ट करते हैं, डिवाइसेस को सिक्योर नहीं रखते हैं. सो प्रॉब्लम यहां से शुरू होता है. और होता क्या ना कि टेक्नोलॉजी को लेके एक बड़ा मिसकंसेप्शन हमारे अंदर है. फॉर एग्जांपल, अलाउ मी अ मिनट, एक्चुअली लास्ट जो पैनल डिस्कशन था हम लोग सब एक्साइटेड थे. लेट देयर बी ओपन सोर्स ऐप. व्हेन यू से ओपन सोर्स ऐप, वी आर सो एक्साइटेड. उसमें जियो कोडेड डेटा ले जाएंगे. ओके फाइन, बहुत बढ़िया. ये जियो कोडेड डेटा सही जाएगा या फिर इंश्योर कर लेंगे? जियो कोडेड डेटा कैसे लेंगे? जीपीएस से लेंगे. आपका जीपीएस प्रूफ्ड नहीं है, आप श्योर हैं? आई मीन आपका सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन हैक्ड नहीं है, आप श्योर हैं? आपका जो डेटा आपको मिल रहा है आप बहुत श्योर हैं कि वो टेम्पर्ड नहीं है? मतलब आप इंश्योर कैसे करते हैं? दिस इज व्हाट वी मीन बाय certain level of awareness and formal training in cyber security. आप जो भी कर रहे हैं ना, जो मान के चल रहे हैं, क्या आप मान के चलने के पोजीशन में हैं? ये सोच लीजिए. अभी मैं मैम का क्वेश्चन पे आता हूं. हाउ डू यू कीप योरसेल्फ सिक्योर व्हेन यू आर ट्रैवलिंग? देयर इज समथिंग कॉल्ड जूस जैकिंग. आप एक तो है कि मोबाइल 24 घंटा मुझे यूज करना है, बैटरी ड्रेन होगा. बैटरी ड्रेन हुआ तो मैं जहां मुझे मिला पावर प्लग और वहां पे एक चार्जर अगर लगा हुआ है और अच्छी बात है, सिर्फ मोबाइल को लगा देना है. इट कैन बी इन रेलवे स्टेशन, इट कैन बी इन द एयरपोर्ट, इट कैन बी इन रेस्टोरेंट, इट कैन बी एनीवेयर. सो व्हेन यू कनेक्ट योर मोबाइल टू सच प्लेसेस, you know that charger will have a chip built in. Unfortunately, आपका आजकल का मोबाइल का डेटा पोर्ट एंड द चार्जिंग पोर्ट इज द सेम. जिस चार्जिंग पोर्ट में आप कोई कनेक्शन लगाते हैं उसी चार्जिंग पोर्ट से आपका डेटा भी जाता है. सो ऑल दैट द पर्सन हैज टू डू यूजिंग दैट डेटा पोर्ट, इंस्टॉल malware on your phone and the phone is in his control then after that. और आपको पता भी नहीं है आपके फोन में क्या क्या हो रहा है. सो जूस जैकिंग को अवॉइड करिए ट्रैवलिंग के टाइम में. कैरी योर ओन चार्जर. अगर आप बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करते हो तो अपना चार्जर लीजिए, सिर्फ चार्जिंग पोर्ट का यूज करिए, कोई चार्जर को यूज मत करिए. दूसरी बात है, एक यू नो जेंटलमैन हु हैज अ बिग कंपनी इन झारखंड, रजिस्टर्ड कंपनी, ही वंस टोल्ड मी when I wanted to travel, discussion ऐसे ही पैनल डिस्कशन नहीं था, इनका क्वेश्चन था. I was in a hurry, I wanted to book a hotel, so I want to Google, obvious, you know, you Google. So when you Google, the first thing that came to him was, you know, a hotel nearby the airport. बहुत खुश हो गए, वहाँ पे सारा बुक कर लिया, रिसिप्ट भी आ गया. When he lands there, goes to the hotel with that receipt, hotel says ये तो हमारा नहीं है. He said क्या? ये तो आपका ये वेबसाइट था. इन्होंने कहा ये वेबसाइट भी हमारा नहीं है. देन हिज क्वेश्चन वाज, हाउ डू आई कीप माई सेल्फ सेफ? ऑब्वियस, इट्स वेरी ऑब्वियस. जो ट्रस्टेड साइट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मेक माई ट्रिप, लेट्स से इज माई ट्रिप, यू नो दोज साइट्स, राइट? सो बुकिंग वहीं से करिए. थोड़ा टाइम लगेगा बट इतनी जल्दी भी मत रहिए. सो ट्रैवलिंग के टाइम में आपके सारे बुकिंग्स, आपका जो भी जो भी आप कर रहे हैं वो प्रॉपर जगह से करिए. ठीक है, ट्रस्टेड साइट से करिए. आई टेल यू समथिंग, आई कैन टेल यू अबाउट माय एक्सपीरियंस आल्सो. आई एम वन ऑफ द अर्लीस्ट यूजर्स ऑफ दिस ई-कॉमर्स साइट्स. फ्लिपकार्ट में बुक्स मिलते थे, डिस्काउंट में मिलते थे. आई रेड अ लॉट ऑफ बुक्स. सो मुझे लगा ये फ्लिपकार्ट कितना गंदा सा नाम है, नहीं इसको ट्रस्ट नहीं करते हैं. यू नो, दिस समथिंग कॉल्ड जीरो ट्रस्ट.
which I practice a lot these days. So फ्लिपकार्ट को भी मैं तब यूज करना चालू किया जब एक आध बार छोटे छोटे कुछ खरीदे और कैश पेमेंट किए और उसके बाद उसको then I started trusting Flipkart as a site, even Flipkart as a site. So even when we are traveling, not traveling anywhere in the world, there is something called a zero trust approach in digital world. You know, एक टीम में क्या बताया जाता है जब हम कोई कंपनी में ज्वाइन करते हैं, start trusting people till you have enough reason not to trust them. In the digital world, I tell people, don't trust anyone till you have enough reasons to trust them. Just उल्टा अप्रोच उसका. So it's about जब आप ट्रैवल करते हो तो आपके जो एक तो ये है, आप जब फोन लेके ट्रैवल करते हो, हाउ सेफ इज योर फोन? आई मीन मैम ने कहा कि वाईफाई कनेक्ट मत करिए. ऑब्वियसली आई मीन पब्लिक वाईफाई में सिक्योरिटी होता नहीं है. जूस जैकिंग के बारे में मैंने बात किया. व्हाट अबाउट योर फोन पर से? ये फोन जब आप किसी से भी मैंने कोई ऐप को आपने डाउनलोड किया और उसको कोई एक्सेस देके रखा, क्या क्या एक्सेस देके आपने रखा? सो आई मीन इफ आई कैन आस्क यू लाइक व्हाट इज ऑन योर फोन? आई मीन एक मूवी आपने देखा कि फोन को एक्सचेंज कर देते हैं, करके किसी ने सजेस्ट किया तो देन ही सेड नो इट्स नॉट पॉसिबल. माय क्वेश्चन टू यू इज, क्या मैं आपका फोन को किसी और को एक दिन के लिए दे सकता हूं? यू आस्क मी दिस, मैं दे दूंगा. इट इज बिकॉज आप मेरे फोन लेंगे तो मेरे फोन में ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा जिससे माई एंटायर लाइफ विल बी इन जियोपार्डी. कैन यू एंश्योर द सेम थिंग? इफ नॉट, ओके, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं मैं फोन किसी को दे नहीं सकता. बट थिंग इज दैट, क्या आपने फोन को ऐसा सिक्योर करके रखा कि कहीं किसी के हाथ लग जाए तो आपका कुछ नहीं होगा? आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ. एंड आई गेस जितने भी डिवाइसेस आपके हैं, आपके लैपटॉप्स हों, आपके टैबलेट्स हों, आपके फोन हों, ठीक है, सो एनी डिवाइस, एनी डिजिटल डिवाइस दैट यू आर कनेक्टेड विथ, आपका इवन योर स्मार्ट वॉच. So in this interconnected world, when you are connected to almost everything, make sure that your devices are perfectly secure in every sense. Thank you. Thank you, Sharat sir. So like in mountaineering also, today we are highly, depending on the networks, like our weather conditions, the windows, summit windows, everything is on the apps which are available online. आप सोचो अगर वो कोई हैक कर दे, कुछ चेंजेस कर दे उसमें, समिट विंडो 18, 19, 20th में थी, उसकी जगह वो 22nd, 23rd, 24th कर दे, तो कितना नुकसान होगा, पूरा सिस्टम हिल जाएगा. So cyber security is applicable in every field, be it mountaineering or any kind of organization, any company which is dealing with even with the normal general store. So इसको हम कैसे इन्वॉल्व करें हर चीज में, इसके लिए एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमें क्या एफर्ट्स और इनिशिएटिव्स लेने चाहिए? मेरा क्वेश्चन अब अगला होगा सत्यरूप आपके लिए कि एडवेंचर और स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो साइबर सिक्योरिटी को कैसे अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इनकॉर्पोरेट करें ताकि जितने भी यूथ हैं जो एडवेंचर स्पोर्ट्स में जा रहे हैं वो साइबर विजिलेंट रहें और केयरफुल रहें while they are using these apps and utilizing this enormous digital world. लेकिन उससे पहले आप अपना कोई एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए हमारे साथ. थैंक यू. थैंक यू. एक्चुअली ऐसा नहीं कि सिर्फ यूथ फंस सकता है. हमारा एक दोस्त, हम नाम भी बोल सकते हैं, मिलिंद बोल के, मुंबई से, तो लास्ट ईयर हम लोग नॉर्थ पोल जाने वाले थे 2023 में. तो उसका पेंडिंग था कुछ पेमेंट, अराउंड 18 लाख पेंडिंग था पेमेंट. तो सोचा कि देगा आराम से, जब बोलेगा. तो उसके पास मेल आया कि हाँ पेमेंट अभी अभी दे दो, नहीं तो तुम्हारा पोजीशन चला जाएगा, मतलब इस साल में तुम कर नहीं पाओगे. तो वो देखा मेल एकदम ठीक ठाक है, लेकिन मेल में सोचे कि मेरा ईमेल अगर satyaroopsiddhanta.com है, सॉरी @gmail.com है, तो
तो वहां पे शायद एक डी कम हो गया ईमेल में, एकदम दिखने में ऐसे ही लगेगा। और उसका भी वो एजेंसी का मेल आया जैसे एकदम सेम, सिर्फ एक कैरेक्टर डिफरेंट था। तो उसको बोला कि हम आपको दूसरा अकाउंट देते हैं, आप यूके में ट्रांसफर कर दो, और प्रेशर डाल दिया, बोला कि आपको अभी अभी तुरंत करना है। और वो बेचारा जो एक्सपीडिशन के लिए पैसा रखा था, वो जाके बैंक में जाके वो पैसा ट्रांसफर कर दिया वो बैंक अकाउंट में। वो बैंक अकाउंट का नाम भी वही एक लेटर, एक अल्फाबेट डिफरेंट था। 18 लाख चला गया, वो तो अच्छा है, एक्सपीडिशन पूरा रेडी है, हम जाएंगे। 1 महीने बाद उसके पास एक्सपीडिशन कंपनी से फोन आया कि तुम्हारा पेमेंट अभी भी पेंडिंग है। बोला अरे पेमेंट तो हमने किया। बोले किसको किया? बोला आपको ही किया। फिर वो मेल दिखाया, बोला हाँ ये तो हमारा ही मेल है। एक्सपीडिशन कंपनी को भी पता नहीं चला कि वो मेल आईडी में एक अल्फाबेट कम हो गया था। फाइनली उसको पता चला कि अरे ऐसा फ्रॉड कैसे हो गया। फिर बंदा ने अपना एक घर बेच दिया, फिर एक्सपीडिशन में जाने के लिए आया था। और वो पैसा, क्योंकि इट वॉज नॉट स्टोलन फ्रॉम हिम, ही voluntarily went to the bank and transferred the amount in his sense to some other account just because of this. So we have to be vigilant and always confirm. आपके पास व्हाट्सएप आ सकता है कि मेरे को तुरंत ये नंबर में जीपे कर दो, आप फोन करके एक बार कंफर्म कर लो, ठीक है ना। और आप जो बोल रहे थे आपका क्वेश्चन, so or also like हम GPS we are fighting for getting the rights that in the mountains में हम लोग को GPS अलाउ किया जाए इंडिया में। हम फ्लाइट में GPS कैरी नहीं कर पाते, लेकिन हम लोग का समिट सक्सेस ये फ्रॉड ना हो, फेक ना हो, क्योंकि ऐसे आप कोई भी समिट के ऊपर पिक्चर डाल ही सकते हो। और जब AI नहीं था तब मेरा पिक्चर मॉर्फ हो गया था। एवं एंड जैसे शरद जी ने बोला, it was like almost 1.5 years इतना पैसा गया just to defend our picture, just to get our summit certificate. तो it was very horrible thing and even आज 10 साल हो गया, 9 साल हो गया, अभी भी वीडियो घूम रहा है कि वो फ्रॉड का। It is not good for our country's name because people are trolling India that इंडिया में ऐसे फ्रॉड होता है, वो भी पुलिस ने किया। So this is very bad taste. So तो वो हम लोग को थोड़ा देखना पड़ेगा। हम लोग एक गार्मिन बोल के एक डिवाइस लेके जाते हैं जहां पे हम लोग ट्रैकिंग करते हैं हमारा जीपीएस लोकेशन, प्लस 360 वीडियो लेते हैं हम लोग खुद को लेके, प्लस पिक्चर लेते हैं, प्लस उधर से हम लोग मेल करते हैं या व्हाट्सएप मैसेज करते हैं ताकि वो जीपीएस कोऑर्डिनेट वहां से वो डिवाइस से पता चल जाए कि ये लोकेशन से हम लोग भेजे हैं। प्लस वो डिवाइस लेके पिक्चर लेते हैं, क्योंकि मेरा डिवाइस तो कोई भी लेके जा सकता है ऊपर में, राइट। तो इतना सारा चीज हम लोग कॉन्शियसली करते हैं टू सिक्योर आवर क्लाइंब। और मेरे ख्याल से ये जो आपका क्वेश्चन है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, मेरे ख्याल से वो हम थोड़ा गेमिफिकेशन करके स्कूल लेवल में हम ये इनसाइट्स डाल सकते हैं। लोगों को बोल सकते हैं कि ये जो में आपके पास व्हाट्सएप मैसेज आता है कि अमेज़न ने इतना सारा फ्री चीज दे रहा है, क्लिक करो, हाँ। लेकिन आप ईमेल वो जो वेबसाइट देखेंगे या ईमेल देखेंगे amazon@gmail.com, अमेज़न का जीमेल से नहीं भेजेगा, अमेज़न से भेजेगा, है ना। तो ये थोड़ा थोड़ा देख के आपको देखना पड़ेगा। और आपको जब अगर VPN है, आप VPN खरीद लो, VPN से करो। आप क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन डायरेक्टली देने के पेमेंट, इंटरनेशनल पेमेंट करने के बदले आप पेपाल यूज करो ताकि आपका क्रेडिट कार्ड नंबर शेयर ना हो जाए। आप किसी को आपका क्रेडिट कार्ड के पिक्चर मत भेजो, क्योंकि आपका पिक्चर और OTP लिख जाता है, पीछे वाला जो कोड लिख जाता है। तो ये सब आपको डिफरेंट जगह पे करना पड़ेगा और सबको अवेयरनेस होगा तो सब कुछ पॉसिबल है। लोग आपको बोलते हैं कि अरे आपका OTP आएगा, वो मेरे को दे देना। OTP मत देना किसी को, या आपका स्क्रीन शेयर कर दीजिए, ये इंस्टॉल कीजिए। कोई भी आप इंस्टॉल मत कीजिए, किसी और का हेल्प लीजिए। लेकिन कोई फोन करके अगर आपको बोलेगा ये आप इंस्टॉल कर दीजिए और ये आपका पासवर्ड आप टाइप कर लीजिए, मैं देखता हूं आपका स्क्रीन में, वो जब आप टाइप कर रहे हैं वो देख लेता है कि आपका पासवर्ड क्या है और आपका अकाउंट हैक हो जाता है। और एक लास्ट चीज है, ये हनी ट्रैप हो जाता है बहुत जगह पे, कि स्पेशली जो लोग सिक्योरिटी में है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन में है, बैंक में है, तो क्या होता है
कोई भी आपका लो मोमेंट्स में आपके आपके पास कोई मैसेज आएगा, कोई दोस्ती का मैसेज आएगा, वो आहिस्ते आहिस्ते स्ट्रांग होता जाएगा। फिर आप ट्रस्ट करना शुरू कर दोगे एक अननोन पर्सन जिसको आप कभी देखे भी नहीं हो, लेकिन मैसेज में चलता रहता है, एंड देन फाइनली आप उसको इंफॉर्मेशन इतना दे देते हो कि वो आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, एंड देन यू कीप ऑन गिविंग दोस थिंग्स एंड ऑल। तो मेरे ख्याल से ये अवेयरनेस हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से इट इज द वे, एंड स्कूल लेवल एंड कॉलेज लेवल में भी ये होना चाहिए। प्लस हम तो देखिए डिजिटल अरेस्ट इतना कुछ हुआ है। बी विजिलेंट एंड बी सेफ। थैंक यू। Thank you, Satya. I think Kamya is the only person who has not spoken, and she is the youngest among all of us. And what is your viewpoint in quick 1 minute? Kamya, you can just throw some light, your viewpoint on cybersecurity and any message from your side to the youth? Sure. I mean, I think most of it, everyone else here has also spoken about. Just the two things, I think, to reiterate what we discussed was verify absolutely everything that you're consuming. And just to share a personal anecdote, I had 2021 September में मैं उत्तराखंड में Mount Trishul expedition के लिए गई थी. And there was a very unfortunate, tragic accident. There was an avalanche and we lost 5 of our very, very close friends. But since there was no communication back home, बहुत limited information वापस पहुंचा था और हम तब भी माउंटेन पे ही थे, सर्च एंड रेस्क्यू चल रहा था. बट सम मीडिया आउटलेट हैड गॉटन टू नो कि माउंट त्रिशूल पे कोई एक्सीडेंट हुआ है और मेरा सोशल मीडिया पोस्ट था अनाउंसिंग कि मैं एक्सपेडिशन पे जा रही हूँ. एंड दे पुट 2 and 2 टुगेदर एंड देयर वर प्लेंटी ऑफ आर्टिकल्स सर्कुलेटिंग कि वी वर लॉस्ट इन द अवलांच. एंड दोज वर अवेलेबल टू आवर फैमिली बैक होम, माई फ्रेंड्स, पीपल इन आवर पीयर सर्कल. तो आपको अगर ऐसा कोई न्यूज़ मिल रहा है, प्लीज़ वेरीफाई एवरीथिंग दैट यू आर कंज्यूमिंग. And for athletes and mountaineers specifically, you have to be on social media. आपको जैसे केवल भैया ने बोला, brands approach करते हैं, उसमें भी there are so many messages you'll receive from 0 followers, 0 post accounts saying कि ये हमारा actual brand का page है, हमें आपके साथ collaborate करना है. Please verify to see if those brands are actually genuine. Have they done collaborations with athletes before? What are they working in? What are their credentials? Try to find people they've worked with, unko bhi likhiye. Because there are plenty of examples of people, paying for some collaboration and then there being some amount of fraud, या आपका पैसा चला गया, या आपके post कभी बाहर आए ही नहीं, or there was some misinformation. So I think that is one. And then also with mountaineers, there are like everyone has spoken, we verify our summits. There is a huge verification process that goes into it. And another anecdote from when we climbed Denali in 2022. और हम मेरा पर्सनली हमेशा यही एफर्ट रहता है कि अगर कोई रिकॉर्ड हो या उस सब का वेरिफिकेशन प्रीवियस रिकॉर्ड्स के हम एक्सपीडिशन ख़त्म करने के बाद करें. So when we came back from the expedition, we were checking, who are the other people around my age who've previously climbed the mountain. And we came across another young Indian climber, I don't want to name names, but a person who had claimed that they had summited the peak quite a few years back. And जब उनके हमें summit pictures internet पे कोई मिले नहीं. We only found one video, and when we went through that, the picture with the tricolor, which was supposedly the summit picture, seemed to be at a place that was most definitely not the summit. And जब हमने हमारे खुद के इतने सारे जो photos थे उन्हें देखे, we figured out that was a point in the summit push जहाँ से summit पहुँचने के लिए आपको और 3 घंटे चलने थे. And when we reached out to this person, they said कि अरे मेरे summit pictures, मेरे certificates वगैरह मेरे दूसरे घर पे हैं या कोई और संभाल रहा है. So please be mindful of everything that you're consuming and try and verify things as much as you can. And again, going back to being mindful of what you're posting as well, because as athletes, we do have to put ourselves out there to be able to garner some amount of support for what we're doing. But usme bhi to really be mindful of what you're putting out there, how much of your personal life you want to disclose to other people, and how much of your professional life, of your ambitions you want to put out there. Very well said, Kamya. I think it would have given some kind of insight to all the youngsters sitting here in the room, and as well as the people who are sitting in the front chairs. So
I would like to thank each one of you present here, all the panelists, for giving us an insight, their own personal experiences in the field of cyber. And I would like to thank Mr. Suresh ji for introducing cyber security, which is the most important thing today, because everything is digitized in the field of adventure and sports. And I would urge all the organizations who are handling sports and adventure to incorporate cybersecurity as well, because it is of paramount importance. And one last point from my side to all the youth present here, MHA, that is Ministry of Home Affairs, has taken a lot of initiatives in providing the awareness to all of us in this field. So I urge all of you to see the MHA site. There is something known as Cyber Dost. See in that Cyber Dost, you will find a lot of tips how to handle yourself in this social media. As also, the moment you find any kind of social crime against you or any kind of assault, digital assault on you, please call up 1930. It's a pan-India number. You can lodge your complaint there, or you can call up on this number. And there is one website also available on which you can put your complaint. So be digital aware. I know we cannot part ourselves without getting into this domain, but be aware and be cyber vigilant. Thank you so much. Thank you.